Hello students, this is our 13th chapter, Organisms and Population. My name is Dr. Insha Sheikh. In the previous part of the video, we were studying about population growth. तो हम लोग ने क्या स्टडी किया था कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज़ अ डायनेमिक पैरामीटर. It keeps changing with time depending on various factors including food, predation, pressure, and adverse weather. In fact, this changes in population density that gives us some idea whether it is flourishing or declining. Then we have learned about some different definitions about emigration, immigrations, new birth, and death. So we have learned what is emigration, death क्या है, न्यू बर्थ और इमिग्रेशन क्या करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, while death and emigration lead to decrease in population density. Then we have studied about immigration, that is the number of individual of a same species that have came into the habitat from elsewhere during टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन. ये हो गया हमारा इमीमाइग्रेशन. इमी का मतलब होता है इन. एमीमाइग्रेशन में जो ई है दैट डिनोट्स फॉर आउट. तो इमीमाइग्रेशन इज़ इन, जहाँ पे लोग अंदर हमारे हैबिटेंट में आ रहे हैं. और ई माइग्रेशन या एमाइग्रेशन जो भी बोलो, इट इज़ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन who have left the habitat during the time period. Clear with this? वो लोगों ने habitat को छोड़ दिया उस particular time में. फिर we have studied about the formula, that is nt plus 1 equals to nt plus bracket में b plus I. b is birth plus immigration minus death plus immigration. तो अगर हम लोग जब ये करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें मिलेगा डेंसिटी एट टाइम. देन वी विल स्टार्ट विद द ग्रोथ मॉडल्स. ग्रोथ मॉडल्स में व्हाट वी हैव स्टडीड, दैट डज द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन विद टाइम शोज एनी स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न. We have been concerned about unbridled human population growth and problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if other animal population in nature behave the same way or show some resistance or growth. Then we have started the exponential growth. सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम लोग ने ग्राफ देखा कि एक तरफ पॉपुलेशन साइज़ और टाइम कैसे तरीके से इंक्रीज़ हो रही है. रिसोर्सेज जैसे फूड, स्पेस, ये सब एसेंशियल है फॉर एनी ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन. आइडियली व्हेन रिसोर्स इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, each species has the ability to fully realize its innate potential to grow in number. Then the population grows in an exponential or geometric proportion. ये है ग्राफ. ये ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस ग्राफ, अगर ये आंसर पूछता है, ये आंसर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ पॉपुलेशन का. एंड ये आंसर जब पूछता है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और इसके बाद वाला जो है पॉइंट, वो दोनों भी हमें लिखना ही होता है. फिर every species is capable of growing exponential under unlimited resource condition. हर species exponential growth करेगा under unlimited, मतलब unlimited resources में, and reach enormous population density in a short time. जब उसके पास unlimited resources available है, ओके, तो वो ऑब्वियसली एनॉर्मस पॉपुलेशन शो करेगा. मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम.
Every species is capable of growing exponentially under unlimited resource conditions and reach enormous population densities in a short time. Clear with this? Darwin showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous number provided food and space remain unlimited. डार्विन जो था, we know who is Darwin, Charles Darwin. Darwin shows how even a slow growing animal, जो एनिमल स्लो ग्रो होता है, जैसे कि एग्जाम्पल उसने दिया एलिफेंट का, वो भी एनॉर्मस नंबर से ग्रोथ करेगा. क्यों? क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन होगा. रिप्रोडक्शन उसी स्टेट में होगा जब उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, जैसे कि फूड होगा और स्पेस होगा. अगर फूड और स्पेस अनलिमिटेड होगा तो जो स्लो ग्रोइंग एनिमल है जैसे एलिफेंट, उसका भी नंबर बढ़ेगा. ये डार्विन ने बताया था. बट रिसोर्सेज लाइक फूड एंड स्पेस आर नॉट ऑलवेज अनलिमिटेड. ऐसे नहीं है कि फूड और स्पेस हमेशा ही अनलिमिटेड होती है. They may be in the beginning, but as the population density increases, हो सकता है स्टार्टिंग में फूड और स्पेस जो है वो अनलिमिटेड हो बिगनिंग में, बट एज द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस, जैसे ही पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हमारी वो इंक्रीज़ होती है, so does the competition for those resources, resulting in slowdown in the rate at which the original population was growing. जैसे ही population density increase हुई तो competition for the resource भी बढ़ गया. क्योंकि पहले क्या था, पहले अगर resources थे तो population कम था. समझो अगर 2 लोग खाने वाले थे तो वो सेम खाना 1 महीने चलेगा. बट अगर 2 की जगह 30 लोग खाएंगे तो पूरा खाना 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा. सो इस तरीके से ये इंटर रिलेटेड है कि जैसे ही कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेज बढ़ गया तो इसके वजह से ये कंपटीशन रिजल्ट करता है इन स्लो डाउन इन द रेट एट विच द ओरिजिनल पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज लाइक फूड एंड अदर रिसोर्सेज, जो भी स्पेस और फूड है, अगर उसका रिसोर्सेज लिमिटेड हो गया जिसके वजह से हमारा कंपटीशन का रिसोर्स भी कम हो गया, दिस विल रिज़ल्ट इन स्लो डाउन. ये हमारे ओरिजिनल पॉपुलेशन जो कि ग्रोइंग था, ग्रोथ ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन को स्लो डाउन कर देगा. दिस रिजल्ट्स इन लॉजिस्टिक और सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, जिसके वजह से अब जो हमारा ग्रोथ कर्व है वो लॉजिस्टिक और सिग्मॉइड कर्व बनेगा. लॉजिस्टिक और सिग्मॉइड कर्व क्या होता है, लेट्स सी. ये है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे. लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्स विल वीड आउट द वीकर वंस. जो वीकर वंस मतलब जो कमज़ोर लोग हैं वो लोग अब कंपटीशन में से हट जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन होगा, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट चलेगा. तो जो वीक पर्सन होंगे वो रिसोर्सेज में से हट जाएंगे. They will not fight for the resources. Logistic between individual for limited resource will weed out the weaker ones. Only the fittest individual will survive. जो individual fittest होगा वो survive करेगा. As we have learned in the previous part, डार्विन की theory थी
नेचर सिलेक्शन होगा एंड देन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड फिर वही जो फिटेस्ट है वो रिप्रोड्यूस करेगा. ओनली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड देन रिप्रोड्यूस. In nature, a given habitat has enough resource to support a maximum possible number. Nature में in the nature a given habitat, जो एक habitat है उसके पास enough resource है to support a maximum possible number beyond which no growth is possible. इस नंबर के बियॉन्ड कोई भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है. Let us call this limit as nature's carrying capacity K for that species in that habitat. Let's call this limit. ये जो लिमिट की बात कर रहे हैं हम लोग, इन नेचर में एक गिवन हैबिटेट है, उसकी इनफ रिसोर्सेज है, दे हैव टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो ग्रोथ इज़ पॉसिबल. एक जब मैक्सिमम लेवल या एक मैक्सिमम पॉइंट रिच कर लिया उसके बाद तो कोई ग्रोथ पॉसिबल नहीं है. द बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज़ पॉसिबल. लेट अस कॉल दिस लिमिट एज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी. इसको हम लोग के बोलते हैं, के से डिनोट करते हैं नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी फॉर दैट स्पीशीज इन दैट हैबिटेट. उस स्पीशीज़ के लिए जो कि इस तरीके के स्पीशीज़ है हैबिटेट में. मूविंग टू द सेकेंड स्लाइड. ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का ऑफ पॉपुलेशन का डायग्राम जिसमें एस बनता है. आई ड्रॉ एंड शो. ये हमारा डायग्राम है, इसमें ऐसे आता है, ऐसे एस बनेगा. क्लियर. तो नीचे है टाइम, वर्टिकल में है ग्रोथ, साइज और वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. फिर सबसे नीचे आता है लेग फेस, उसके ऊपर आता है लॉग और एक्सपोनेंशियल फेस. सबसे ऊपर आता है स्टेशनरी फेस और स्टेशनरी फेस के जस्ट पहले आता है डिमिनिशिंग ग्रोथ फेस. ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन. लैग फेज, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेस, स्टेशनरी फेज या फिर डिमिनिशिंग ग्रोथ फेस. ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन. क्लियर. देन मूविंग टू द सेकेंड स्लाइड. A population growth in the habitat with limited resource shows initially a lag phase followed by a phase of acceleration and deceleration and finally an symptom. And when he finally finds a symptom, when the population density reaches the carrying capacity, एक प्लांट ग्रोइंग पॉपुलेशन ग्रोइंग करना है इन अ हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज. शो इनिशियली अ लैग फेज, वो स्टार्टिंग में एकदम लैग फेज दिखाती है. फॉलोड बाय द फेसेस ऑफ एसेलरेशन, फिर उसे एसेलरेट करना पड़ता है. लैग फेज दिखाती है तो उसकी वजह से एसेलरेट करना पड़ता है. एंड डिक्लेरेशन साइन करवाते हैं. एंड देन फाइनली अ सिम्टम, फिर उसके बाद सिम्टम दिखाई देता है. When the population density reaches the carrying capacity, a plot of population density in relation to time result in a sigmoid curve where all per logistic growth. Since resources for growth for most animal
population are finite and becomes limiting sooner or later. The logistic growth model is considered a more realistic one. Since sources for growth for most animal population are finite and becoming limiting sooner or later, logistic growth model in the considered as a more realistic way. Then, under particular set of selection pressures, organisms evolve toward the most efficient reproductive strategy. एक particular set of selection pressure organisms evolve towards the most effective reproductive strategy. Some reproduce a large number of small sized offspring. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को एक साथ ही जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं, बट वो लोग सब ऑफस्प्रिंग साइज में बहुत छोटी होती है. While other produce a large number of large sized offspring, बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं या हम ह्यूमंस भी ऐसे होते हैं कि हम लोग एक लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं. एंड देयरफॉर इनके एग्जांपल्स हैं बर्ड्स एंड मैमल्स. और स्मॉल साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग का एग्जांपल है ऑयस्टर, पेलाजिक फिशेस. I'll repeat. Under a particular set of selection pressure, organism evolve towards the most efficient reproductive energy. Some produce a large number of small-sized offspring, that is oyster, pelagi, and fishes, while other produces a small number of large-sized offspring. जिसका एग्जाम्पल है बर्ड्स, मैमल्स एंड एक्सेट्रा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी विल लर्न अबाउट पॉपुलेशन इंटरैक्शन. कैसे पॉपुलेशन के साथ इंटरैक्ट करते हैं. एंड व्हाट इज़ इंटरैक्शन. इंटरैक्शन करने के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती है. वी हैव टू लुक ओवर इट. लेट्स सी. पहला है पॉपुलेशन इंटर रिएक्शन. देयर इज़ नो नेचुरल हैबिटेट विच हैज़ ओनली वन स्पीशीज़ और एनिमल्स और प्लांट्स. ऐसा दुनिया में कोई भी हैबिटेट नहीं है जिसके पास सिर्फ एक ही स्पीशीज़ हो. या तो एनिमल हो या तो प्लांट हो या कोई भी स्पीशीज़ हो, बट एक ही हो. ऐसा तो कोई भी हैबिटेट है ही नहीं. फॉर एनी स्पीशीज़, कोई भी स्पीशीज़ के लिए द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ अनदर स्पीशीज़ एज फूड. As we are human, we know that we eat hens, we eat cow. For any specific, कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पे तुम्हें खाना पड़े, द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ अनदर स्पीशीज़ एज फूड. तो हम लोगों को कम से कम रिक्वायरमेंट करना चाहिए. मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ अनदर स्पीशीज़ एज फूड. Even a plant species which has photosynthetic abilities cannot survive alone. प्लांट जो कि अपना खाना खुद बना सकता है, उसके पास भी ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो खुद से अपने आप में अकेला सरवाइव करे. It needs soil microbes to break down the organic matter in soil. हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा है.
प्लांट को भी सॉइल माइक्रोब्स चाहिए, जैसे विटामिन्स नहीं, न्यूट्रिएंट्स, देन मिनरल्स चाहिए सॉइल में से। सॉइल में से जब वो मिनरल्स लेता है तब वो ग्रो कर सकता है। अगर उसने मिनरल्स नहीं लिया या सॉइल नहीं लिया या वाटर नहीं लिया तो it is not possible for a lone plant also to grow and release the inorganic nutrients. प्लांट हमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स देता है जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं और उसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट होता है, क्योंकि प्लांट इज़ द ओनली सोर्स फॉर आवर फूड. सो let us repeat this again. There is no natural habitat which has only one species or animal or plant. For any species, the minimal requirement is another species as food. कोई भी species का minimal requirement होता है कि कोई और species रहे as food. Even a plant species which has photosynthetic abilities cannot survive alone. वो species भी अकेले alone survive नहीं कर सकता. It needs soil microbes to break down the organic matter in soil, and then after only that it releases the inorganic nutrient. ये है population interaction. Coming to the next slide. It is obvious that in nature, animals, plants and microbes do not and cannot live in isolation but interact in myriad ways to form a biological community. It is very obvious कि nature में ना ही तो plant, ना ही तो animal, ना ही तो microbes, ना ही तो nature खुद अकेले नहीं रह सकते. कोई भी अकेले आइसोलेट करके खुद को नहीं रह सकते. प्लांट नीड फूड, प्लांट नीड सॉइल. सॉइल भी एक अबायोटिक फैक्टर है टू लीव. उसी तरीके से वी एनिमल्स नीड फूड जो कि प्लांट से आता है. हम ह्यूमंस को खाना चाहिए, एनिमल्स को खाना चाहिए, तो हम सबको प्लांट से खाना मिलता है. माइक्रोब्स ऑल्सो नीड समथिंग कि वो लोग उस चीज़ से ग्रो हो. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेड से ईस्ट ग्रो होता है, तो अगर ब्रेड ख़राब ना होगा तो ईस्ट ग्रो ही नहीं होगे. सो दिस इज़ द इंटरैक्शन. एवरीथिंग इन द नेचर is interacted to each other in directly or indirect ways. Interaction may be intraspecific. Intraspecific means existing between organisms of same population. Same population के बीच में interaction हो रहा है, तो वो इंट्रैक्शन हो गया इंट्रास्पेसिफिक. और एक है इंटरस्पेसिफिक. इंटरस्पेसिफिक में क्या होता है? बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़. ऐसे मेंबर्स जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं. इसका एग्जांपल क्या है? मूल्स डोंकी एंड हॉर्स का ऑफस्प्रिंग. मेल डोंकी फीमेल हॉर्स का ऑफस्प्रिंग है मूल. तो ये एग्जाम्पल है इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन का. आई रिपीट, इंटरैक्शन मे बी ऑफ टू वेज. एक है इंट्रास्पेसिफिक, दैट इज़ एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम पॉपुलेशन, और एक दूसरा है इंटरस्पेसिफिक बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़. देन
The interspecific interaction occur between minimum two organisms. इंटरस्पेसिफिक क्या है, बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ वाला जो इंटरेक्शन है, इसे होने के लिए एटलीस्ट टू ऑर्गेनिजम्स चाहिए. जैसे प्लांट एनिमल या प्लांट एंड एनिमल, जैसे प्लांट या प्लांट, एनिमल और एनिमल, या फिर प्लांट और एनिमल, एनिमल और प्लांट. ऐसे जो इंटरेक्शंस होते हैं, such interactions may be classified as 4 types. इनके 4 टाइप्स होते हैं. वाइज, न्यूट्रलिज्म, नेगेटिव, हार्मफुल, पॉजिटिव, बेनिफिशियल, एंड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शन. 4 हो गए. पहला है न्यूट्रलिज्म. न्यूट्रल होता है, एकदम न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ नहीं, न्यूट्रल. जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव भी होगा, न्यूट्रल. फिर एक होता है नेगेटिव, हार्मफुल इंटरैक्शन. उस इंटरैक्शन का रिजल्ट हार्मफुल होगा, जैसे कि मूल इज़ हार्मफुल. उसका अब आगे कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता, उसका स्पीशीज़ वहीं ख़त्म होगा, तो वो हो गया मूल. फिर है पॉजिटिव इंटरैक्शन. पॉजिटिव इंटरैक्शन के बारे में तो हमें बहुत सारी चीज़ पता है. काउज़ में हम लोग ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि इंटरैक्शन करके काउज़ प्रोड्यूस किया है. काउज़ हमें इतना एक्स्ट्रा मिल्क देती है पर ईयर, हमें बहुत फ़ायदा होता है, तो वो पॉजिटिव या फिर बेनिफिशियल इंटरैक्शन हो गया. 4th टाइप है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शन. पॉजिटिव पॉइंट्स भी है उसमें इंक्लूडेड और उसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी इंक्लूडेड हो गए. इवन इन सिंपलेस्ट कम्युनिटीज़ मैनी इंटरैक्शन एग्जिस्ट. सिंपलेस्ट कम्युनिटीज़ में भी बहुत सारे इंटरैक्शन एग्जिस्ट करते हैं. नॉट ऑल में बी ईज़िली सीन. हर इंटरैक्शन ईज़िली दिखाई नहीं देता. Interspecific interaction arise from the interaction of population of two different species. Interspecific कैसा interaction है? That is the interaction that arise from the interaction of population of two different species. दो अलग अलग species होती है, right? This interaction could be beneficial. Beneficial means positive होगा, कुछ फ़ायदेमंद होगा, कुछ गुड चीज़ उससे बाहर आएगी, पॉजिटिव इंटरैक्शन. सेकंड है डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल. या ना ही तो पॉजिटिव होगा ना ही तो नेगेटिव होगा, मतलब दैट इज़ ऑफ नो यूज़, ना हमारे काम आएगा ना हमें नुकसान देगा. इंटरैक्शन तो हो गया पर दैट इज़ न्यूट्रल. उसे बोलते हैं डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल, नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट. दिस इज़ टू वन ऑफ द स्पीशीज़ और बोथ. दिस डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल जो है ये कोई एक स्पीशीज़ के लिए होगा या फिर दोनों स्पीशीज़ के लिए होगा. ना तो वो हार्मफुल है ना तो वो बेनिफिशियल है, एक दूसरे के लिए या फिर किसी और के लिए. ये हो गया. देन वी हैव कंप्लीटेड. हम लोग ने क्या क्या देखा पॉपुलेशन इंटरैक्शन में? नो नेचुरल हैबिटेट विच हैज़ ओनली वन स्पीशीज़ और एनिमल्स और प्लांट. हम लोग ने फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी कि एक प्लांट जो कि एक अबायोटिक फैक्टर है उसको भी किसी और ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए. फिर हम लोग ने देखा कि इंटरैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, मे बी इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक. इंट्रास्पेसिफिक इज़ एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम पॉपुलेशन एंड इंटरस्पेसिफिक क्या होता है बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़.
The interspecific interaction occur between minimum 2 organisms या फिर plant animals या फिर animals and plants या plant animal plant ऐसे कुछ। और फिर उस इंटरेक्शन को फिर से 4 पार्ट्स में या टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वाइज न्यूट्रलिज्म, नेगेटिव, हार्मफुल, बेनिफिशियल या फिर पॉजिटिव, एंड बोथ positive and negative interaction. Even in simplest communities, many interaction exist. Not all may be easily seen. फिर जब हम लोग इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन पढ़ेंगे तो इट अराइज फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2 different species. That means this interaction could be beneficial या फिर detrimental और neutral. Neutral मतलब neither it is harmful nor it is benefit to one of the species or both. Here we have completed. अभी हम लोग ये वीडियो यहीं एंड करेंगे. In the next part of the video we will continue the next topics. Thank you students.